یہ علاقہ انڈیا کے وسطی گھنے جنگلوں کا علاقہ تھا، مگر وہاں کوئی جنگل نہیں تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آگے شہری آبادیاں شروع ہونے والی ہیں۔ رات ابھی کافی باقی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی رفتار تیز کر دی، 4-5 میل تک تیزی سے رینگتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر رینگنے کی اپنی نارمل رفتار پر آ گیا۔ کافی دیر کے بعد مجھے دور روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ روشنیاں کسی شہر کی معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے اپنا رخ ان روشنیوں کی طرف کر لیا اور دریا کے کنارے سے اتر کر کھیتوں کے درمیان جو مینڈیں بنی ہوئی تھیں ان پر چلنے لگا۔ روشنیاں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ للت پور شہر کی روشنیاں ہی ہو سکتی تھیں۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا کچھ اور روشنیاں بھی دکھائی دینے لگی تھیں۔ میں ابھی تک کھیتوں میں چلا جا رہا تھا۔ یہ سارے زیر کاشت کھیت تھے۔ کسی کھیت میں فصلیں کھڑی تھیں، کہیں پانی دیا ہوا تھا۔ کھیتوں کے کناروں پر کہیں کہیں تاڑ اور ناریل کے چھتریوں والے بلند قامت درخت بھی تھے۔ میرا خیال تھا کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کھیت میں کوئی کسان وغیرہ نظر نہیں آتا تھا۔ دور جو روشنیاں تھیں وہ پہلے جھرمٹوں کی شکل میں نظر آتی تھیں، اب پھیل گئی تھیں۔ دریا بھی شاید دائیں جانب مڑ گیا تھا۔ میں روشنیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ کھیت ختم ہو گئے اور میں ایک سڑک پر نکل آیا۔ سڑک پر روشنی کا کوئی کھمبا نہیں تھا۔ میں نے اپنا رخ شہر کی طرف ہی رکھا اور سڑک کے ساتھ ساتھ گھاس اور جھاڑیوں میں چلتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ للت پور کا شہر ہی ہے۔ اس طرح مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میں بھوپال سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ ابھی تک مجھے کمانڈو خالد کی بو کسی جگہ بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کمانڈو خالد دریا سے دوسرے کنارے کی طرف بہتا ہوا مجھ سے کافی فاصلے پر جا چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے خالد کی بو آنا بند ہو گئی ہو، یعنی سانپ کے ڈسنے کے اثر سے میری یہ حس کچھ دیر کے لیے معطل ہو گئی ہو، جیسا کہ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ شہر کے نام کا علم مجھے اس طرح ہو سکتا تھا کہ میں شہر کی آبادی میں جا کر کسی دکان یا سٹور کے باہر لکھا ہوا بورڈ پڑھوں یا کوئی ایسی لاری دیکھوں جو شہر کی طرف جا رہی ہو اور جس کی پیشانی پر للت پور لکھا ہو۔ اگرچہ میں انسان کی آواز میں بات کر سکتا تھا، لیکن میں کسی سے شہر کا نام پوچھتے ہوئے گھبراتا تھا، کیونکہ ایک سانپ کو انسان کی آواز میں بولتے دیکھ کر کوئی بھی چیخ مار کر مجھ سے دور بھاگ سکتا تھا۔ چونکہ وہ رات کا وقت تھا، اس لیے شہر کی آبادی میں جانا میرے لیے اتنا خطرناک نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس وقت سڑکیں خالی ہوں گی، لوگ گھروں میں سو رہے ہوں گے۔ اگر کسی دکان یا سٹور کے بورڈ پر للت پور لکھا ہوا ہوگا تو میں اسے آسانی سے پڑھ سکوں گا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس شہر کا ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے، ورنہ میں اسی طرف جاتا۔ سڑک آگے جا کر ایک اور سڑک سے مل گئی جہاں بجلی کے کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ ایک ٹرک پیچھے سے آیا اور شور مچاتا تیزی سے گزر گیا۔ میں ایک طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا۔ اچانک ایک بلی ایک طرف سے نکل کر غراتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے زور سے پھنکار ماری۔ بلی دوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور پھر وہیں بیٹھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے غرانے لگی۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے جسم سے وہ خاص بو خارج نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جانور اور کیڑے مکوڑے اور کتے بلیاں مجھ سے دور بھاگ جاتی تھیں۔ یہ بھی شاید اسی سانپ کے زہر کا اثر تھا جس نے مجھے گڑھے کے اندر کاٹا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث تھی۔ اب مجھ پر کوئی بھی جانور یا دوسرا سانپ حملہ کر سکتا تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ مجھے نیولے سے تھا۔ نیولا سانپ کا دشمن ہوتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر انسان کی طرح وہ بھی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور جب تک اسے مار نہ ڈالے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب مجھے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں نے پھن کھول کر اتنی زور سے پھنکار ماری کہ بلی بھاگ گئی۔ میں شہر کی روشنیوں کی طرف منہ کر کے بار بار زبان باہر نکالنے لگا۔ سانپ اسی طرح فضا میں دوسرے جانوروں اور انسانوں کی بو سونگتا اور ان کی آوازیں اور آہٹیں سنتا ہے۔ اپنے ساتھی کمانڈو خالد کی بو کسی طرف سے بھی نہیں آ رہی تھی۔ کہیں خدا نخواستہ خالد دریا میں ڈوب تو نہیں گیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کمانڈو خالد بڑا ماہر تیراک تھا۔ میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ دریا میں جس موج نے بلند ہو کر اسے اٹھایا تھا وہی موج اسے بہاتی ہوئی دور لے گئی ہے، شہر سے بھی آگے لے گئی ہے۔ مجھے اب انسانوں اور جانوروں اور درندوں دونوں دشمنوں سے بچنا بھی تھا اور شہر جا کر یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ یہ کون سا شہر ہے۔ میں رات کے اندھیرے میں ہی شہر میں جا سکتا تھا۔ میں بڑی سڑک کے ایک طرف ہو کر جا رہا تھا۔ یہ کوئی بڑا شہر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ دور دور مکان اور عمارتیں تھیں جن میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ سڑکوں پر بھی کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ بڑے شہر کی سڑکوں پر رات کو بھی ٹرک وغیرہ گزرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں بالکل خاموشی تھی۔ سڑک کی دونوں جانب دکانیں آ گئیں جو بند تھیں۔ ایک جگہ ٹریفک کا گول تھڑا تھا جس میں ایک کھمبا
लंबा नस्ब था। खंबे के ऊपर एक नियॉन साइन का एक चौकोर बोर्ड लगा था जो रोशन था। उस पर अंग्रेजी और हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मैं उसके करीब गया तो ये मसला हल हो गया। उस पर लिखा था, ललितपुर की मजेदार मिठाइयाँ घनश्याम जी की दुकान पर आए। ये ललितपुर का शहर ही था। बकौल कमांडो खालिद के उसके आगे भोपाल का शहर था। मैं उसी तरह रेंग कर भोपाल नहीं जा सकता था। रास्ते में कदम कदम पर खतरा था। सबसे आसान तरीका यही था कि मैं किसी तरह ललितपुर के स्टेशन पर भोपाल जाने वाली गाड़ी पकड़ लूं। पहले तो ये पता करना था कि ललितपुर का रेलवे स्टेशन कहाँ है। इसका आसान तरीका ये था कि मैं दिन निकलने से पहले पहले रेलवे लाइन का सुराग लगाऊं और फिर उसके साथ साथ चलता हुआ स्टेशन पर पहुंच जाऊं। मुझे अब शहर में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं वहीं से खेतों पर जाने वाली सड़क पर हो गया। मैंने शहर से निकलते ही चारों तरफ जरा ऊपर करके निगाह दौड़ाई कि शायद कहीं मुझे रेलवे के सिग्नल की बत्ती नजर आ जाए। जब रेलवे सिग्नल किसी तरफ भी दिखाई न दिया तो मैं शहर की आबादी से हटकर जुनूब की तरफ तेजी से रेंगने लगा। एक जगह नहर आ गई। नहर के ऊपर छोटा सा पुल था। मैं पुल पर से गुजर गया। आगे नशेबी जगह थी। उसके आगे थोड़ी सी चढ़ाई थी। जैसे ही मैं चढ़ाई चढ़कर लंबे से बंद के ऊपर आया, सामने रेलवे की पटड़ी बिछी हुई थी। यहाँ जमीन ऊंची थी तो ये कोई बंद नहीं था, बल्कि इस पर रेलवे लाइन गुजरती थी। दूर स्टेशन की सुर्ख और सब्ज बत्तियां झिलमिला रही थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की रोशनियों की तरफ रेंगने लगा। जब उस जगह पहुंचा जहां से रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी तो बोर्ड लगा था जो हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के शुरू में लगा होता है। उस पर बिजली की रोशनी पड़ रही थी और उस पर अंग्रेजी और हिंदी जबान में ललितपुर लिखा हुआ था। अब इस बात की तस्दीक हो गई कि ये ललितपुर ही है और मैं भोपाल की तरफ ही जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बीवी जमीला मेरा इंतजार कर रहे हैं और जो मुझसे दूर नहीं है। लेकिन भोपाल पहुंचना भी एक मरहला था। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना था कि कौन सी गाड़ी किस वक्त भोपाल की तरफ जाएगी। ये मुझे कोई दूसरा आदमी ही बता सकता था। ये कोई दिल्ली या बंबई जैसा बड़ा स्टेशन नहीं था कि जहाँ बोर्ड पर लिखा हो कि फुला गाड़ी फुला शहर को इस वक्त जाएगी। ललितपुर के प्लेटफॉर्म पर काफी रोशनी थी और मुसाफिर भी दूर से नजर आ रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की बजाय दूसरी तरफ हो गया जहां स्टेशन के अहाते की दीवार थी। दीवार के करीब ही से एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। मैंने सोचा कि बाहर की तरफ से स्टेशन में दाखिल होना ज्यादा महफूज और मुनासिब रहेगा। इस ख्याल से मैं दीवार पर चढ़ गया और रेंगता हुआ दूसरी जानिब उतर गया। दूसरी जानिब मेरा ख्याल था स्टेशन के सामने वाली कोई सड़क होगी, मगर वहां छोटा सा मैदान था जहां 3-4 झुग्गियां सी बनी हुई थी। ये खाना बदोश की झुग्गियां लगती थी। उनके पीछे स्टेशन की इमारत की रोशनियां थी। मैं बड़े इत्मीनान से झुग्गियों के दरमियान से होकर गुजरने लगा। जैसे ही मैं तीसरी या चौथी झुग्गी के पास पहुंचा, मुझे जोर जोर की 3-4 फुनकारें सुनाई दी और उसके साथ ही झुग्गी में से 4 स्याह रंग के बड़े बड़े सांप निकल आए, जिन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया। चारों के चारों सांप मुझसे कोई 10 गुना बड़े सांप थे। वो अपने फन खोले जमीन से 3-3 फुट बुलंद होकर खड़े थे। वो झूम रहे थे और मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देखते हुए फुनकार रहे थे। इस किस्म की सूरत हाल से मुझे कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मैं छोटा सा सांप था, अगरचे मैं इंसानों की तरह बात कर सकता था और इंसानों की तरह सोच सकता था, मगर इन 4 ताकतवर सांपों का मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके तेवर बता रहे थे कि वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। यहाँ मैंने अपनी इंसानी ताकत का इस्तेमाल किया और जोरदार आवाज में 2-3 मरतबा हिश हिश किया कि शायद सांप डर कर इधर उधर हो जाएं, लेकिन उनमें से कोई भी सांप अपनी जगह से न हटा। फिर मैंने इंसानी आवाज निकाल कर उन्हें डराने की कोशिश की और कहा, भाग जाओ। मेरी इंसानी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल साकित हो गए। उसके बाद उन्होंने ज्यादा शिद्दत से फुनकारना शुरू कर दिया। इतने में झुग्गी में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर सांप के करीब आई और इधर उधर देखने लगी। उसने जरूर मेरी इंसानी आवाज सुन ली थी और अब ये देख रही थी कि अभी अभी जो आदमी यहाँ बोला था वो कहाँ है। फिर उसने मुझे घूर कर देखा। 2 सांपों ने मुझ पर हमला कर दिया और एक ने मुझे अपने मुंह में पकड़ कर उठा लिया। बूढ़ी औरत ने सांप को डांटा और मुझे उसके मुंह से निकाल कर बड़े गौर से मेरा जायजा लिया। चारों सांपों ने अपने फन समेट लिए थे। बूढ़ी औरत के सर के बालों की मैली कुचैली लटें दाएं बाएं लटक रही थी। उसने मुझे गर्दन से पकड़ कर उठाया हुआ था। वो मुझे लेकर अपनी झुग्गी की तरफ जाने लगी तो मैंने अपने जिस्म को झटका देकर छुड़ाने की कोशिश की, ताकि इससे पहले कि ये पुरस्कार औरत मुझ पर कोई मंत्र फूंक कर मुझे अपने कब्जे में करे, मैं फरार हो जाऊं। लेकिन
लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में वो फुर्ती नहीं रही थी। तब मुझे याद आया कि जब बड़े सांप ने मुझे अपने मुंह में उठाया था तो मेरी गर्दन में एक सुई सी चुभी थी। जरूर ये जहर की हल्की सी मिकदार थी जिसने मेरे जिस्म में दाखिल होकर मेरे जिस्म की फुर्ती और तेजी खत्म कर दी थी। इस ख्याल से मैं परेशान हो गया कि मैं औरत के कब्जे में आ चुका हूँ। बूढ़ी औरत मुझे झुग्गी में ले आई जहाँ सांपों की 6-7 छोटी बड़ी पटारियां पड़ी थी। एक बूढ़ा सपेरा जिसके बाल सफेद हो गए थे बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। उसने बूढ़ी सपेरन से पूछा, कुलकर्णी, तुम्हारे सांपों ने ये क्या छोटा सा कीड़ा पकड़ा है, इसको छोड़ दो। बूढ़ी सपेरन ने मुझे हाथ में पकड़ रखा था। झुग्गी में मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी और मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। वो बूढ़े सपेरे के सामने बैठ गई। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, वासु, मुझे सांप अचरज लग रहा है, यानी अजीब लग रहा है। इसके बदन से इंसानों की बू आ रही है, क्या तुमको ये बू नहीं आई? बूढ़े सपेरे ने नारियल के हुक्के का कष्ट लगाकर कहा, नहीं आई, ये तो मामूली सांप है, इसको बाहर फेंक दो। बूढ़ी सपेरन मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी। फिर उसने मुझे नाक के पास ले जाकर सूंघा। उस वक्त मैंने उसे डसने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना मुंह पूरी तरह न खोल सका। मेरे जिस्म की आधी ताकत भी नहीं रही थी। उसने मुझे बूढ़े सपेरे को भी सूंघाया और पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें मनुष्य की बू नहीं आती? बूढ़े सपेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम सठिया गई हो, ये कोई आवारा कीड़ा है, बाहर ले जाकर इसे छोड़ दो। मगर बूढ़ी सपेरन अपने बूढ़े सपेरे खामत से ज्यादा अक्लमंद और तजुर्बाकार मालूम होती थी। उसने मेरे जिस्म में छुपी हुई इंसान की बू को महसूस कर लिया था। पता नहीं वो मेरे साथ अब क्या सलूक करने वाली थी। इतना मुझे मालूम हो गया था कि वो मुझे पकड़ने में बड़ी खुश थी। मैंने एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश की, मगर मैं अपने जिस्म को पूरी तेजी के साथ न हिला सका। बस जरा सा हिलजुल कर वहीं रह गया। बूढ़ी सपेरन ने अपने आदमी से कहा, ये भागना चाहता है, इसका मतलब है कि ये हमारी बातें सुन रहा है। बूढ़े सपेरे ने नारियल का हुक्का एक तरफ रख दिया और मुझे झुककर गौर से देखने लगा। बोला, कुलकर्णी, लगता है तुम ठीक कह रही हो शायद। वो बोली, वासु, मैंने सारी जिंदगी सांपों में गुजारी है। मैंने गुरु गोरख की भी सेवा की है। मैं गुरु गोरख के दरबार में सेवा करने वाले सांपों की बू पहचानती हूँ। ये गुरु गोरख के दरबार का सेवादार सांप है। ये मर्द का रूप धार सकता है। बूढ़े ने कहा, तो फिर अभी तक इसने इंसान का रूप क्यों नहीं धारा? ऐसा करके ये यहाँ से फरार भी हो सकता है। बूढ़ी सपेरन ने कहा, गुरु गोरख के दरबार के सांप कभी किसी संसार वासी पर अपना राज जाहिर नहीं करते। अगर वो दुनिया में रहने वाले किसी इंसान के सामने आदमी के रूप में जाहिर हो जाएं, तो गुरु गोरख के दरबार से हमेशा के लिए धुतकार दिए जाएंगे। बूढ़े सपेरे ने कहा, तो फिर तुम्हें इस सांप का क्या फायदा है? वो अपने पोपले मुंह को खोलकर हंसने लगी। वासु, तुम बेवकूफ हो। मैं इस सांप पर गुरु गोरख का 30 दिन का चिल्ला करूंगी। 30 दिन के चिल्ले के बाद ये सांप अपने आप मुझ पर अपना इंसानी रूप जाहिर कर देगा। फिर ये मेरा गुलाम होगा। मैं इसकी मदद से धरती के नीचे दबे हुए राजे महाराजों के सारे खजाने बाहर निकलवा कर संसार की सबसे दौलतमंद औरत बन जाऊंगी। बूढ़ा सपेरा बहुत मुतासिर हो गया। कहने लगा, ऐसा है तो इसको पटारी में बंद करके अभी से चिल्ला शुरू कर दो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास बड़ी धन दौलत आ जाए। बूढ़ी सपेरन ने मुझे एक पटारी में बंद कर दिया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे कालिए ने इसको टीका लगाया है कि नहीं? बूढ़ी सपेरन बोली, मेरा कालिया सांप इसकी गर्दन पर टीका न लगाता तो ये अब तक भाग गया होता। मुझ पर एक और नागहानी मुसीबत नाजिल हो गई थी। कहाँ मैं ललितपुर के स्टेशन पर आकर भोपाल की तरफ जा रहा था कि अपनी बीवी से जाकर मिलूंगा, और कहाँ इस बूढ़ी सपेरन के जाल में फंस गया था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि मेरा जिस्म आधा सुन हो गया था और मैं अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये एक नया अजाब मुझ पर नाजिल हुआ था। मैंने जानबूझकर अपनी इंसानी आवाज नहीं निकाली थी। अगर मैं ऐसा करता तो इन दोनों को पूरा यकीन हो जाता कि मैं उनके मतलब का ही सांप हूँ। फिर तो वो मुझे किसी हालत में भी आजाद न करते। मैं तो पहले ही काले सांप के बेहोशी वाले टीके से नीम जान हो चुका था। इस इंकिशाफ के बाद कि मैं वाकई इंसान हूँ जिसने सांप का रूप धार रखा है, बूढ़ी सपेरन शायद मुझे किसी लोहे के संदूक में बंद कर देती और उसी वक्त मुझ पर काबू पाने का अमल शुरू कर देती। लेकिन इस चुड़ैल की कैद में ज्यादा देर रहना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं वहां से फरार होने के तरीके सोचने लगा। मुझे यकीन था कि काले सांप ने मेरे जिस्म में जो जहर दाखिल किया है उसका असर कुछ वक्त गुजरने के बाद जरूर खत्म हो जाएगा। फिर चाहे
कुछ हो जाए मैं पटारी को तोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। इंसान की शक्ल इख्तियार करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुझे वो वहाँ रोक सके, लेकिन खुदा जाने कब्र के अंदर किस किस्म के सांप ने मुझे काटा था कि उसके जहर का असर मुझे मुस्तकिल लगता था और लगता था कि अब शायद मैं कभी अपनी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकूंगा। मुझे बूढ़ी सपेरन और बूढ़े सपेरे की बातें करने की आवाज आ रही थी। बूढ़ी सपेरन उसे कह रही थी कि कल बसंत पंछी की रात है, मैं कल इस पर अपना चिल्ला शुरू करूंगी। बूढ़े ने उसे कहा, अच्छा अब बातें न करो, मुझे नींद आ रही है। दोनों की आवाज आना बंद हो गई। मैं पटारी में नीम जान होकर पड़ा था, अपने जिस्म को ज्यादा हरकत नहीं दे सकता था। सारी रात मैं पटारी में बंद अपनी किस्मत के उलट फेर पर सोचता रहा कि ढाके से निकलने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेरी ये हालत भी हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर कोई गाड़ी आकर रुकी, शायद ये भोपाल जाने वाली गाड़ी थी। मुझे उसी गाड़ी पर सवार होना था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के चलने की आवाज आई और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज रात के सन्नाटे में तहलील हो गई। किसी वक्त दूर से किसी इंजन के शंट करने की आवाज आ जाती। रात मैं बेबसी के आलम में पटारी में बंद पड़ा रहा और बाहर रात गुजरती चली गई। एक दो रेलगाड़ियां स्टेशन पर आकर रुकी और आगे भोपाल या दिल्ली की तरफ निकल गईं। सुबह हो गई। मैं पटारी में बंद था। पटारी में अंधेरा था, दिन की रोशनी नहीं आ रही थी। बाहर लोगों की आवाजों और स्टेशन के हल्के हल्के शोर से मालूम हुआ कि दिन निकल आया है। इसी दौरान बूढ़े के खांसने की आवाजें आईं और फिर ये आवाजें झुग्गी से बाहर चली गईं। काफी वक्त गुजर गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई झुग्गी में दाखिल हुआ है। ये बूढ़ी सपेरन थी। वो अपने आप से बातें कर रही थी। गुरु गोरख देव जी, मेरी तपस्या सफल कर देना। मैं तेरे सेवादारों की सेवादार हूँ। मुझे लक्ष्मी देवी के दर्शन करवा दो। लक्ष्मी देवी हिंदू देवमाला में दौलत की देवी है। हिंदू लोग धन दौलत हासिल करने के लिए उसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी जिस हिंदू को अपने दर्शन दे दे, उनके अकीदे के मुताबिक वो आदमी माला माल हो जाता है। इस बूढ़ी सपेरन के सर पर भी बुढ़ापे में दौलत का भूत सवार हो गया था। इस औरत ने मेरी पटारी को उठा लिया और वहां से चल पड़ी। वो चलती गई। मुझे कुछ पता नहीं था वो मुझे लेकर कहां जा रही थी। मैंने एक दो बार अपने साथी कमांडो मंजर की बू सूंघने की कोशिश की, मगर काले सांप के जहर के असर से मेरी बू सूंघने की हिस्स भी कमजोर पड़ गई थी। मुझे किसी समत से भी कमांडो खालिद की बू न आई। मेरा ख्याल है कि बूढ़ी सपेरन मेरे पटारी को लेकर घंटा डेढ़ घंटा पैदल चलती रही होगी। वो किसी वक्त कोई मंत्र भी गुनगुनाने लगती थी जो मेरी समझ से बाहर था। एक जगह पर वो रुक गई। मुझे महसूस हुआ कि वो बैठ गई है। उसने बैठते हुए गहरा सांस लिया था। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे वो कोई सीढ़ियां उतर रही हो। सीढ़ियां उतरने के बाद वो किसी तरफ चल पड़ी। वो दोबारा रुकी और बैठ गई। उसने मेरी पटारी जमीन पर रखकर उसे हाथों से धकेल कर जैसे किसी दीवार के साथ लगा दिया। मुझे बूढ़ी सपेरन के मंत्र पढ़ने की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वो उठी और बोली, गोरख देव, मैं आज रात के पिछले पहर तेरा चिल्ला काटने आऊंगी। मेरा चिल्ला स्वीकार करना। और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो मुझसे दूर हटती चली गई। फिर उसकी आवाज गायब हो गई। मेरी पटारी का मुंह बंद था। मैंने कोशिश की कि अपना सर ऊपर उठाकर पटारी के ढक्कन को अलग कर दूं, मगर मेरा सर डोलने लगा और मैं अपना सर ज्यादा ऊंचा न कर सका। इस काले सांप ने खुदा जाने मेरे अंदर किस किस्म का जहर दाखिल कर दिया था कि मैं पूरी ताकत से कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। बेबसी की हालत में पटारी में पड़ा रहा। वक्त का एहसास खत्म हो गया था। कुछ मालूम नहीं था कि बाहर दिन कितना बाकी रह गया है, शाम हो गई है या नहीं। इतना मुझे एहसास था कि ये बूढ़ी सपेरन मुझे किसी जमीन के अंदर लाई है और मैं जमीन के नीचे किसी सुरंग या गार में पड़ा हूँ। बाहर कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। किसी वक्त कोई परिंदा बोलता हुआ आसमान पर से गुजर जाता और उसकी आवाज मुझे बड़ी धीमी आती। इस औरत ने कहा था कि वो रात के पिछले पहर आएगी। आज रात से उसने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने के वास्ते मुझ पर अपना चिल्ला शुरू कर दिया था। मैं पहले ही एक मुसीबत में फंसा हुआ था। कुछ मालूम नहीं था कि ये औरत मुझे किसी नई मुसीबत में फंसाने वाली है। मैं पटारी से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म की ताकत मेरा साथ नहीं दे रही थी। बाहर खामोशी ज्यादा गहरी हो गई थी। शायद रात हो गई थी। बूढ़ी सपेरन ने रात के पिछले पहर मुझ पर चिल्ला करने और मंत्र फूंकने के लिए आना था। मैं उसके आने से पहले वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये बात मेरे इख्तियार में नहीं रही थी। मैं दुआएं मांगने लगा कि खुदा मुझे इस अजाब से निजात दिलाए और मुझे ताकत दे कि मैं पटारी से निकल कर फरार हो सकूं। अचानक मुझे एक बू महसूस हुई। सांप होने
होने की वजह से मैंने उस बू को फौरन पहचान लिया। बू मेरी पटारी के करीब आ रही थी। ये बू मुझे इसलिए महसूस हुई थी कि ये मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। ये किसी दूसरे सांप की बू थी जो मादा सांप यानी नागिन थी। सांप नर और मादा की बू को दूर से पहचान लेते हैं। मैं कुछ समझ न सका कि ये नागिन यहाँ क्या करने आ रही है। हो सकता था कि वो इस जगह रहती हो और रात को अपने ठिकाने पर वापस आई हो। इतना मुझे यकीन था कि नागिन को भी मेरी बू आ गई होगी और जब वो वहाँ एक पटारी देखेगी तो जरूर उसे खोलने की कोशिश करेगी। मैंने बाहर की आवाजों पर कान लगा दिए। ये मैंने मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है, वरना सांप के कान नहीं होते। वो ज्यादा आवाजें अपने जिस्म की खाल और अपनी जबान के जरिए सुनता है। बाहर की कोई आवाज जब उसके जिस्म से टकराती है तो उससे इर्तियाश पैदा होता है और सांप समझ जाता है कि ये किसकी आवाज थी। क्या सांप की कोई अपनी जबान भी होती है? इसका अभी तक मुझे कोई तजुर्बा नहीं हुआ था। अभी तक न किसी सांप ने मुझसे सांपों की जबान में बात की थी और न मैंने उस जबान में कोई बात की थी। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि सांप भी अपनी जबान में एक दूसरे से बात करते हैं। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि सांप की भी एक जबान होती है और वो इस जबान में एक दूसरे से बात करते हैं। इसकी हैरत अंगेज तफसील में आगे चलकर आपको बयान करूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।